Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, I was saying that you had ma'am, actually the question number 11 and 12 I had done it, but by mistake, ma'am, they were not included in the PDF. Only page, ma'am, the same page as the question I was included. Ma'am, can I send those again? Beta, speak to your class teacher about it. Okay, ma'am. Speak to Ajit ma'am about it, and then let me know what she says. Okay, ma'am. Okay, by the time the students are joining, let's continue. This is the question we were doing yesterday. Going over it once again. एक बार quickly revise करो मेरे साथ. You had to find out the sum of these angles, X, Y, and Z. The angles X, Y, Z, which are marked outside the triangle. So X, Y, Z are your exterior angles. To find out the sum of these three, first of all, you want to find out the values of X, Y, Z. So one by one, X, Y, Z की values आपको find out करनी है. And then after obtaining the values, you have to find out the sum. Once you have the values for X, Y, Z. Yes. Device. Sorry, Good morning. but I can't hear you. Your voice is... other device से join कर ले. Okay. Yeah. तेजवी, आप भी बेटा कुछ पूछ रहे थे? Thank you, ma'am. मैम ऐसे ही पूछना था कि मैम ये जो आपने मैम वैल्यूज निकाल ली है मैम उसके बाद x प्लस वाई मैम इनको ऐड कर देना है. इनको ऐड करना है. क्वेश्चन आपका ये था ना, आपको इन तीनों का सम फाइंड करना है. तो वैल्यूज तो थी नहीं इनकी. तो मैम 360 आया तो फिर सम आंसर आपका Yes, ma'am. मैम और कोई क्लास में मैम हमारी क्लास में मैम कोई आउटसाइडर MGN IT. बेटा, it's not outsider, it's from school. Okay, draw the figure for the of the same question. It's page number 40. Page number 42 in your books. Draw the for second part. Excuse me, ma'am. Yes, Tanish. Ma'am, Excuse me, ma'am. Prabnoor. Ma'am, can you please enable the option of rename for 1 second? Okay. Done, beta. मैम वेट कर लो 2 मिनट. excuse me, ma'am. Thank you, ma'am. Yes. Ma'am, if there is a x-sided polygon and we want to know, ma'am, what is the degree sum of the all angles, and how do we know? Could you please repeat your question? Ma'am, he is saying like, that. Let him speak. Eklavya, beta, bolo beta. ma'am, I am saying that if we have a x-sided polygon and we have to find out the degrees, ma'am, the sum of all three and all the sides degrees, and what formula can we apply? If you are given the number of sides of the polygon and we have to find out the sum of its angles. Yes, ma'am. Interior angles. The sum of the interior angles will be given by number of sides minus 2 multiplied with 180. For example, if you have a polygon with 10 sides, if your polygon is a decagon, it has 10 sides. So 10 minus 2 multiplied with 180.
So 8 into 180 will give you the sum of all interior angles. This works for the interior angles. We also call it the angle sum property. Yeah, ma'am. We also call it the angle sum property. Ma'am, We will yes. use एक्सटीरियर में क्या करना होता है? exterior angle property actually is same for all polygons. That's why we are doing this question. Once you do this part, question number 7th B part, you will see A part में हमारे पास triangle था, हमने triangle के exterior angles find किए, X, Y, Z. If you look at the screen, A part में आपके पास जो exterior angles थे, triangle के 3 exterior angles हैं, X, Y और Z. हमने इनकी values find out की, and then we have obtained the sum of these three. तो ये 3 exterior angles थे, इन तीनों का जब sum find किया, आंसर आया 360 degrees. B part में उन्होंने हमें एक quadrilateral दिया है. This is a quadrilateral. The exterior angles are marked with X, Y, Z and W. आपको इस क्वेश्चन में ये आंसर फाइंड आउट करना है. सम ऑफ दीज 4. ये क्वेश्चन है आपका, और ये चारों क्या हैं? आपके एक्सटीरियर एंगल्स हैं. So No what we, interior angle is given. just like the previous one, we are going to first of all find out the values of each of these X, Y, Z और W की हम values find out करेंगे. फिर जो values होंगी उनको add up करके हमारा आंसर आ जाएगा. To find out the values of these, we are given the angles inside the quadrilateral. This one here is 120 degrees. Y के साथ जो बन रहा है वो 80 degrees है. The one here alongside Z, it is 60 degrees. This one is not given to us. ये missing है यहाँ पे. एक interior angle missing है. I am going to number that as 1. ये जो missing है इसका नाम है It 1. will be 100. Angle 1. So 1 by 1, we will be calculating X, Y, Z and W. Once you have the values for these, you can find out the sum. अब X, Y, Z की value तो quickly निकल आएगी. X की value भी linear pair से, मैम यस उसकी भी. Y की value भी linear pair से, मैम Z की वैल्यू भी. Z मैम की value Z भी plus linear pair 60 से. is equal to 180. Ma'am, the answer is 120 degree, ma'am. See, also of Z. मैम यस. और that's right. X की value 60 आएगी, Y की 100 मैम आएगी, Y Z की 120. 100 आएगी. और Z की मैम 120. मैम Z की 120 आएगी. What do you think about W? मैम W W कहाँ की पर है? आएगी मैम MW 60 will प्लस be मैम 60 80, डिग्री MW will be प्लस 80. X. 80. MW मैम will be 60 80. plus X मैम is equal to exterior angle मैम property 120 आएगी उसकी भी. Let's ask one by one. Eklavya. Ma'am, it Eklavya. will be 80. As per quadrilateral, 360 will be the sum of all the 4 angles. So, ma'am, 120 plus 80, 200. Then 260, ma'am, then 100 will be left. So, one angle 1 will be 100. And, ma'am, then 80 will be the W side as it is the linear pair. That's right. That's right. In order to find out the value for W, the exterior angle, Angle which is sum property marked मैम. by मैम हम W, ऐसा कर सकते हैं. we will, इंटीरियर yes. एंगल्स निकाल लिया 1. Parampreet, exterior angle property is applicable to a triangle only. Ma'am, I have done the X plus Y plus Z plus W. Okay, Parampreet, actually, that's a good question. If you can do the value of W with exterior angle property, you cannot, because exterior angle property works only in a triangle, not in a quadrilateral. Okay. Tejveer, beta, you've raised your hand. You have a question? मैम मैम हम इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से करेंगे ना. हाँ जी, ये angle sum property से होगा. Let's solve. To find out X, I'm going to use the property of linear pair. Sum of the two angles is 180 degrees. Wherever you are using any property, kindly give the reason also. So 60 X की मैम. value आपके पास आ गई 60 degrees. मैम Yes, W की वैल्यू 80 डिग्री है. yes, the value of W is 80 degrees. Then we मैम, find मेरा out तो सही है. Y. Y will also be calculated using linear pair. Y and 80 degrees, they're forming a linear pair. The sum of, yes, that's right, Eklavya, the answer will be 100 ma'am. 360 degrees. मैम The Y is total. equal to 100.
मैम z is equal to 120. Then we find out Ma'am, it will become 360 degree. the sum total is 360 Yes. degree. Ma'am, yes. Now step मैं फिर 4, इंटीरियर एंगल सब फाइंड करेंगे. हाँ जी, W फाइंड करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा एंगल 1. First step to find W will be to find angle 1. W निकलना है 1 की हेल्प से, 1 निकलेगा एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से. You need to understand this. W कैलकुलेट करने के लिए हमें एंगल 1 की हेल्प चाहिए, लेकिन एंगल 1 हमें दिया नहीं हुआ, तो एंगल 1 को हम किस तरह से फाइंड करेंगे? यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. तो इंटीरियर एंगल्स जो Ma'am, है answer उनका is सम, 280 angle sum by. आर यू श्योर? मैम 100 आया ना मैम? मैम 100. 100 आया ना? Ma'am, Kindly yes, check 100, your 100. calculation. Be very careful with your calculations. Angle 1 comes out to be 360 minus 260. This is 100 degrees. Now we can find out W. W and 80 angle degrees. 1 are forming a linear pair. 80 degrees. Here you come to know that W is 80 degrees. Now finally you can add up all of these, X, Y, Z and W. X plus Y plus Z plus W. आपने ये जो 4 वैल्यूज फाइंड आउट की हैं उनको एड अप कर दो, X की, Y की, Z की और W. मैम 360, ma'am. आंसर आएगा 360. मैम Ma'am, 360. 360. That's correct. अब ऑब्जर्व करो, जब हम एंगल सम प्रॉपर्टीज पे काम कर रहे थे, मैम हर का आंसर 360 आएगा. Yes, अगर मैम always. लास्ट में. ऑलवेज फॉर एनी पॉलीगन. हमने 2 के लिए यहाँ पे अभी कैलकुलेट किया है, ट्राइंगल के लिए और क्वाड्रिलेटरल के लिए. ट्राइंगल के जो एक्सटीरियर एंगल्स थे उनका टोटल भी 360 बना, क्वाड्रिलेटरल के जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका टोटल भी 360 बना. दिस इज अ फैक्ट फॉर एनी पॉलीगन. कोई भी पॉलीगन होगा उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा? 360 डिग्रीज होगा. अब आपको याद रखना है, अगर आप इंटीरियर एंगल्स के साथ वर्क कर रहे हो, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी है, वो चेंज होता है. जितनी साइड्स होंगी उसके अकॉर्डिंग इंटीरियर एंगल्स का सम चेंज हो जाएगा. ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम 180, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360, पेंटागन पे जाओगे 540 हो जाएगा, बट एक्सटीरियर एंगल्स का सम सेम रहता है, 360 360 360. Let me know if you have completed this. Ma'am, 1 minute. I have Done. to take screenshot. मैम ऐसे थोड़ा मैम वो कर दो, zoom in. You want to draw the figure? Figure is from the book actually. Wait. Yeah. मैम कंटिन्यू. Thank you, ma'am. Done. The next exercise, before we start, I want you to write down a few facts. Make a note. Exercise 3.2. Make a note and write down these points. First point says the interior angle at a vertex makes linear pair with the exterior angle at that vertex. मतलब अगर आपके पास कोई भी पॉलीगन है, आप इसका कोई वर्टेक्स अगर लेते हो, ठीक है, इस वर्टेक्स पे अगर आप एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करो, I hope everyone knows how to draw exterior angle. Yes, मैम ma'am. यस. You can extend one of the sides. एक साइड को एक्सटेंड कर दो. ये जो बाहर एंगल बन गया, this is the exterior angle. And ये अंदर वाला कौन सा है? इंटीरियर एंगल. Interior. ये वर्टेक्स था हमारा. तो वर्टेक्स पे एक एंगल अंदर बनता है पॉलीगन के, एक एंगल बाहर बनता है. इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री. मैम And- वर्टेक्स मैम जैसे अगर मैम वर्टेक्स पर मैम दिया जो एक्सटीरियर एंगल है मैम वहां पर दिया हुआ है x, मैम और अंदर भी x दिया हुआ है,
मैम तो फिर मैम वो 2x बन जाएगा। Sum will be 2x. ओके मैम। मैम Sum अगर will be- उधर पूछा हो कि Sum is- इंटीरियर एंगल को प्लस करना है सबको मैम, ऐड करना है मैम, और अगर मैम सब जगह मैम वो x दिया हो तो मैम फिर वो डिवाइड कर होगा मैम। हाँ जी। 3x इज इक्वल टू 180। हाँ जी। डिपेंड करेगा आपका पॉलीगन कौन सा है। ट्राइंगल में तीनों का सम होगा 180। अगर आपके पास क्वाड्रिलेटरल है तो वो अंदर वाले जो एंगल्स हैं उनका सम होगा 360। 360। इट विल डिपेंड ऑन द पॉलीगन। जस्ट रिमेंबर, अगर आप इंटीरियर एंगल्स का सम लिख रहे हो तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी है। अभी हम इंटीरियर एंगल्स की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम पॉलीगन का कोई वर्टेक्स ले, एक अंदर एंगल बनता है, एक बाहर बनता है, उन दोनों का क्या रिलेशनशिप है। The sum of the interior angle and the exterior angle is 180 degrees, and this property is called linear pair. You can do it for any polygon. किसी भी polygon के लिए आप चेक कर सकते हो। Let us say if you have a pentagon, अगर आपके पास pentagon है, pentagon का आप ये वाला vertex ले लो, ये corner जो बन रहा है, extend one of the sides, ये जो horizontal वाली side है इसको आगे ले जाओ। ये angle जो बाहर बना ये exterior angle है, जो अंदर है this is the interior angle. इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा। You can always use this property अगर आपके पास पॉलीगन का कोई इंटीरियर एंगल है, आपको उसके साथ एक्सटीरियर चाहिए, अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर, या फिर आपको बाहर वाला एंगल दिया हुआ है और आपको अंदर वाला चाहिए, एट द सेम वर्टेक्स, यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी। द सम ऑफ द टू इज 180, वहां से आपके पास निकल आएगा। देन सेकेंड प्रॉपर्टी अभी हम कंक्लूड करके आए हैं, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, जैसा मर्जी पॉलीगन हो आपके पास, रेगुलर, इरेगुलर, 3 साइड्स, 4 साइड्स, 5 साइड, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा? 360 डिग्रीज होगा। एनीवन विद क्वेश्चंस रिगार्डिंग फर्स्ट और सेकंड पॉइंट? मैम यहाँ पर लिखा है मैम, एक मैम फर्स्ट सेकंड पर लिखा है द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। मैम इंटीरियर एंगल का भी 360 होता है कि मैम 180? नो, इंटीरियर एंगल हमने प्रॉपर्टी लास्ट एक्सरसाइज में की है, n-2 into 180 वाला, उसमें फॉर्मूला लगेगा। मैम जैसे 10 - 2 इज इक्वल टू 8 into 180। इंटीरियर एंगल्स के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। ओके मैम। एक्सटीरियर के लिए हमेशा 360, इंटीरियर वाला चेंज होगा, वो फॉर्मूले से कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, दे आर इंटर रिलेटेड। हम बात कर रहे हैं अब रेगुलर पॉलीगन की। रेगुलर पॉलीगन का मतलब जिसमें सारी साइड्स बराबर हैं, सारे एंगल्स बराबर हैं। रेगुलर पॉलीगन का हमें एक चीज जो पहले से पता थी वो ये कि उसके अंदर जो एंगल्स बनते हैं सारे बराबर होते हैं। I'll take an example, regular polygon. I'm considering equilateral triangle. Equilateral triangle की तीनों साइड्स बराबर होती हैं? Ma'am, yes. मैम यस। Because it's a regular polygon, right? It is a regular polygon, तो इसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होंगे। साइड से तो हम काम ही नहीं कर रहे, अभी हम एंगल्स पे काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर वाले तीनों एंगल्स भी इक्वल है। हम इन तीनों एंगल्स को x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तीनों की वैल्यू सेम है, तीनों का नाम x रख दो। अब इस पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ जरा। फॉर अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी 60 degree answer। X plus X plus X equals to 1. मैम 60 डिग्री आंसर। Is equals to 180. each equals to 60 degrees. Ma'am, yes. Now, with the help of these interior angles, equilateral triangle के अंदर वाले जो तीन एंगल्स मिले, उनकी वैल्यू हो गई 60 डिग्रीज ईच। अगर इनकी हेल्प से मुझे एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो, अब ये कॉर्नर ले लेते हैं, एक 120 वर्टेक्स, degree। लेट्स टेक इट, extend it, I want to find this exterior angle. Use property number 1, नोट का जो पहला पॉइंट है वो यूज करो। Ma'am, 120 degrees. 60 plus Linear this equation। exterior angle is equal to Linear 180. equation। तो एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या आया? 180 minus 60, 120.
120 डिग्रीज। ये यहाँ पे जो था ऑरेंज से जो मैंने मार्क किया है उस एंगल की वैल्यू आ गई 120 डिग्रीज। नाउ लेट अस मूव टू दी अदर साइड। यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा ऑन द लेफ्ट साइड, इसको एक्सटेंड कर दो। अब ये जो मैंने ब्लू से मार्क किया है, कैन यू फाइंड आउट द मेजर ऑफ दिस एक्सटीरियर एंगल? 120 डिग्री। इसकी वैल्यू भी 120 आएगी। 120 मैम सबकी 120 होगी सबकी। मैम। What यस was this मैम, one? क्योंकि ये जो मैम picture बन रहा है, मैम सबकी मैम उसकी भी 120 120। बिकॉज इंटीरियर एंगल्स इक्वल थे तो एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। दिस इज पॉइंट नंबर 3। रेगुलर पॉलीगन के अंदर वाले एंगल्स तो इक्वल होते ही हैं, एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। टेल मी इफ दैट्स क्लियर। मैम क्लियर। Clear, ma'am. यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी, अब हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर रहे हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी एंड थर्ड प्रॉपर्टी, रेगुलर पॉलीगन के लिए। लेट अस से हमारे पास कोई रेगुलर पॉलीगन है, हम पेंटागन लेके चलते हैं इस बार। रेगुलर पेंटागन की बात करते हैं। रेगुलर पेंटागन मींस ऑल 5 साइड्स इक्वल, ऑल 5 एंगल्स इक्वल। अगर फिगर में इस तरह से मार्क लगे हुए हैं दैट मींस इट्स अ रेगुलर पॉलीगन। तो हम रेगुलर पेंटागन की बात करके चलते हैं, इसके सारे एंगल्स इक्वल होंगे, इंटीरियर as well as exterior। इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल, एक्सटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल। मिक्स नहीं कर देने कि अंदर वाले एंगल्स बाहर वाले एंगल्स के इक्वल हैं। इंटीरियर एंगल जो बन रहे हैं 5 वो आपस में इक्वल होंगे, जो बाहर 5 एंगल बनेंगे वो आपस में इक्वल होंगे। लेट अस ड्रॉ द एक्सटीरियर एंगल्स। ये एक्सटीरियर एंगल नंबर 1 है, this is exterior angle number 2, this is exterior angle number 3, this is 4th and this is 5th। ये चारों सॉरी ये पांचों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो इन सभी को हम x से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंगल 1 उसको भी x बोल दिया, 2 को भी x बोल दिया, 3 को भी x बोल दिया, 4 को भी x बोल दिया, 5 को भी x बोल दिया। दिस प्रॉपर्टी इज थर्ड पॉइंट, ये रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। हमने ये सारे एंगल्स को x से रिप्रेजेंट कर दिया। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करो नंबर 2। लुक एट सेकेंड पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन एंड टेल मी व्हाट प्रॉपर्टी वी कैन यूज। मैम फिर से बोलना, क्या बोलना? आपके पास रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, मैंने पेंटागन लिया है, 5 एंगल बनेंगे इसके। अभी आपने थर्ड पॉइंट ऊपर जो लिखा है, व्हाट डज दैट से? टेल मी। Ma'am, all the exterior angles are equal. Exterior Exterior angles of angles a are regular equal. set polygons are equal. दैट्स राइट। अगर आपके पास रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो उन सभी को मैं सेम वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Clear. मैंने पांचों एंगल्स को x से रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ यूज प्रॉपर्टी नंबर 2। And the sum of exterior angle for any Sum. polygon is 360. Ma'am, So, we'll इसमें- sum the x and divide by 360 then. एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इन सभी का सम कितना होगा? 360. Sum of all 5 exterior angles is 72 degrees. So x 360. plus x plus x plus x plus x is 360 degrees। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बना आपके पास?
5x. I want you to just observe this. Solve करने से पहले, just before you solve, ये जो आपके पास step आया, ये वाला third step जो आया equation का, 5 represents Number of sides. Ma'am, number of sides. x is representing Measure of Ma'am, the angle. value of the sides. value of the angle, exterior angle. ये फॉर्मूला बन गया रेगुलर पॉलीगन के लिए. अगर आपको पॉलीगन की साइड्स पता मैम है, अगर एक्सक्यूज मैम यस शानवी, मैम अगर हमें पॉलीगन्स की मैम अगर हमें मैम एंगल का मेजर पता हो मैम वन एंगल का, तो मैम उसे हम अगर मैम रेगुलर पॉलीगन हो तो मैम उसे हम नंबर ऑफ साइड्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैम आंसर आ जाएगा. यस. मैम अब ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? अगर आपको रेगुलर पॉलीगन की साइड्स पता है, आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है. इफ आई से यू हैव अ 10-sided रेगुलर पॉलीगन, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 10 मल्टीप्लाइड विद एक्सटीरियर एंगल. एक्स Exterior angles is equal to 360. यहां से एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हो आप. Yes. व्हाट विल बी द मैम आंसर? यस ma'am. मैम 360. वो तो सभी Exterior का angle is equal to 36. 36 degrees. फ्रॉम हियर अगर आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना हो, ये जो 10 लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर ले जाओ. तो आंसर क्या आ गया? Ma'am, 36. 36 degrees. Ma'am, 0, 0 will cut. तो 10-sided रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? Ma'am, 72. 36 degree. मैम 36 डिग्रीज. ठीक है. ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है इन पॉइंट नंबर 4. रेगुलर पॉलीगन के लिए अगर आप नंबर ऑफ साइड्स को n से रिप्रेजेंट कर दो, यू कैन टेल हाउ मेनी साइड्स द पॉलीगन हैज. 5, 4 जितनी भी हैं, n से लिखना है उसको. ये हमने पहले भी किया है. x इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल. दो हम वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, n और x. n विल टेल यू कितनी साइड्स हैं, x विल टेल यू के जो बाहर एंगल्स बन रहे हैं उनका मेजर क्या है. इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 360 डिग्रीज होगा. दिस इज समथिंग यू वांट टू रिमेंबर. And for 5 exterior angle, it will be ma'am 72 degrees. 72 degrees. So using this formula you can find out n और x. जब आप क्वेश्चंस करोगे आपको तब ये क्लियर हो जाएगा. मैं एक बार फिर आपको रिकॉल करवाऊंगी कि ये फॉर्मूला बना कैसे है. For the time being you can just commit it to memory. एक बार लर्न कर लो इसको, but try to understand it, I'm learned. because later on you will be having so many formulae that it will be difficult to differentiate. तो understand करके इसको याद रखना है. रट्टा नहीं लगा लेना. Try to understand. कि मैम ने कहा था ये होता है. Can we make a note of it in our copies? Yes, yes, of course. Of course. You will be doing questions. It will be actually मैम थोड़ा scroll down करना. automatically Ma'am, आपको थोड़ा याद Ma'am, you will send it in group now. I will share it in the group, Navraj. Are you writing down the example? Yes. Ma'am, scroll up करना. Ma'am, कर ली. Can you please share this note in the group? Yes, yes, I will. I will share the complete work for today. Turn to page 44. Turn to page number 44 in your books. Take a look at question number 1. You have to find out x. Observe
that x is an exterior angle. दोनों पार्ट्स जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, x is an exterior angle. So the property you will use to find x, whether it will be exterior angle property or interior angle property, you have to decide now. पिछली एक्सरसाइज में जो x फाइंड किया था वो अंदर था, तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई थी, इंटीरियर एंगल्स का सम. यहाँ पे x कहाँ पे है, एक्सटीरियर में है, तो आप कौन सी मैम 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री. yes, ये जो तीन एंगल्स बन रहे हैं बाहर, मैम हम ऐसा कर सकते हैं कि इंटीरियर में x ले और 125 और x का लीनियर इक्वेशन बना के कर रहे हैं. वो बहुत सारे स्टेप्स हो जाएंगे. आप पहले 125 के साथ वाला एंगल निकालोगे, फिर ये एंगल मिलेगा आपको, फिर आप ये वाला थर्ड एंगल फाइंड आउट करोगे, फिर आपको x मिलेगा. देखो कितने सारे स्टेप्स हैं, एटलीस्ट 3 स्टेप्स हैं, एटलीस्ट 3. And if you apply the property that sum of exterior angles is 360 degrees for all polygons, तो उससे आपका एक स्टेप में आंसर आ जाएगा. ये जो बाहर वाले 3 एंगल्स हैं 125, 125x, इन तीनों का सम 360 है. यहाँ से आप x फाइंड कर सकते. 360 minus 250. 110. सेम वेव इन बी पार्ट. बी पार्ट में जो बाहर वाले एंगल्स बन रहे हैं, एक ये 60 है, ये 90 डिग्रीज है, एक 70 डिग्रीज है, एक को इन्होंने x मार्क किया है. ये वाला एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? मैम 120 डिग्रीज. 90 के साथ. मैम 90 डिग्री और 90 डिग्री. दिस एक्सटीरियर एंगल विल बी 90 डिग्री. और इन सभी का सम कितना होगा? 360 डिग्री. 360 डिग्री. तो 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x प्लस 90, 5 है. ध्यान से 1 2 3 4 और ये 5, 5 एंगल्स का सम आपके पास ये 360 हो जाएगा. यहाँ से आप x निकाल सकते हैं. 50 डिग्री. 50 degree. 50 डिग्री. First figure will be 110 degree. Right. First part the answer is 110. Second part the answer is 50 50 degree. डिग्री. is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम Let's- क्लियर. Let's write it in books then. Quickly solve it in your copies. Draw the figure alongside. Figure draw करना बहुत जरूरी है. मैम इसका सिर्फ आंसर लिख दें, स्टेप्स के साथ शो भी करना है. No, no, no. You can directly write down the answer. इसमें कोई steps नहीं है. इसमें directly answer निकल रहा है. Question number 1, page number 44. Question number 1, A part. Solve your equation and obtain x. मैम 110 डिग्रीज. Same way, do B part. Everyone remember one thing. जब आप एक्सटीरियर एंगल्स का सम लिख रहे हो, ऑलवेज काउंट के कितने एंगल्स होने चाहिए. पेंटागन है, 5 एक्सटीरियर एंगल्स होने चाहिए आपके पास. ट्राइंगल में 3 एक्सटीरियर एंगल्स होने चाहिए. क्वाड्रिलेटरल में 4 होने चाहिए. ऐसा ना हो एंगल्स हो 5, आप यूज कर रहे हो 4, आपका आंसर गलत हो जाएगा.
solve and find out the angle X here. 310 degree minus total- 310 degree The minus total 360. becomes 300, Ma'am, 310. 310. Okay. Ma'am, 50 degree. Completed. Ma'am, yes. Ma'am, yes. Okay. The meeting will